Up to now, our discussion has culminated in ascertaining our identity. Now, all of us, we quite, uh, not in detail, I may say, quite with faith, we have certain understanding of our position in this world. One thing is position of the self as a soul, and the position as a servant of God or as a part and parcel of God. So we have evolved through these sessions sufficient faith in very important aspects. One is scientific faith in God, the second is the way of gaining knowledge, the faith in Vedas, then the understanding from the Vedas as to who we are. So now we have this at the back of the mind that we are spirit souls. हम आत्मा है, ये हमें अभी थोड़ा सा आइडिया आ गया कि आत्मा शरीर फर्क होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बॉडी itself has different levels of understanding. One level of understanding is gross body made up of gross substances, earth, water, air, fire, ether. My gross body which is visible, and the other thing is which is not exactly visible with bare naked eyes without any surgery. Means if somebody, हमारा शरीर अगर काट दिया जाए और ओपन किया जाए तो अंदर भी कुछ है, बट वो सब किससे बना है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर. देन वी सॉ देयर इज अ सटल एग्जिस्टेंस, सूक्ष्म शरीर, स्थूल और सूक्ष्म. सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? Mind, intelligence, and false ego. So these are also experienceable, of course, with a subtle uh, uh, consciousness, subtle thinking. है ना? मन दिखता नहीं है पर पता है, एंड इतना पता है कि इट्स अ साइंटिफिक रियलिटी. Without having any so-called scientific instruments, we are sure that we have mind. So these are called self-evident truths. They don't need anything else. It's self-evident. मन है ये सेल्फ एविडेंट है. कैसे? But there are symptoms. We saw what is the symptom that there is mind. There are three functions of mind. Which are they? Thinking, feeling, willing. Thinking happens in mind. We continuously think. I think somebody as my enemy. I think somebody as my friend. I think somebody is favorable to me. I think somebody is not so good in terms with me. है कि नहीं? So somebody scolded me and I am unhappy. I am unhappy means who is unhappy? Mind. Mind is unhappy. Mind has feelings. Thinking, feeling. Thinking means what is good for me, what is not good for me. Thinking over goodness or badness or whatever. Suppose कुछ आज पार्टी है, पार्टी में कुछ खाने वाले हैं तो, या फिर आपके घर में कुछ पार्टी अरेंज करना है तो what will be a good menu? How do you come to that good menu? That good menu may be good for you and bad for somebody else. So it is local thinking, good, bad, what is better for me, what is best for me. These are our own mental calculations, and mind is self-evident because we can think and we can feel. Thinking, feeling, and willing. Willing means I am determined to do something. I want to do something. I am pushed within to do something. I want something to be completed in some amount of time. I don't want something to be completed in some time. All this is willingness. I am willing to do, but as long as this person is there, I am not going to. This is also a kind of
These are flavors of willingness. I know spirituality is good for people. For me it is good, but I am not much willing to give a lot of time to it. I don't have. That is willpower. Somebody is weak at willpower, and then it is said that doctors say that he was not sufficiently old aged or sufficiently diseased, but he left his body because he was not sufficiently willing. Willpower was very weak. He has intelligence, but his willpower is weak. That's why he can't achieve. That is willing. समझ में आ रहा है ना? Thinking, feeling and willing. इंटेलिजेंस का क्या है फंक्शन? डिस्क्रिमिनेशन, डेवलपिंग सत असत विवेक. विवेक is function of intelligence. So somebody's mobile starts ringing and the person picks it up in a meeting room, and he is not giving any attention to people who are attending the meeting and there is some discussion going on. He is talking on phone. What we say, इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? He doesn't have that discrimination, what should be done, what should not be done. So there is a morality assessment. Morally it is correct, morally it is not correct. That kind of discrimination is part of intelligence. Intelligence also is related to our memory. It is said that one is more very intelligent if he has a very strong memory. Symptom of intelligence is memory. So that is intelligence. And what is false ego? But what it is? What's the function of false ego? Okay. General conception of ego. या व्यक्तीला खूप ego आहे. This person has a very high ego because he is very arrogant, doesn't give any value to what somebody else has to say. What is his feeling, he doesn't care. He just arrogantly speaks. We generally think ego is that, but the definition of course, ego is related to false ego as it is defined in the scriptures. False ego is the energy by which we think that we are nothing but this body. हमने उस दिन देखा ना कि this is my finger, this is my hand, this is my body. तो ये this is my finger but I am not finger, this is my hand but I am not hand. But it is difficult to understand this is my body. We think this is me. That substance which is created by God, that amazing feeling that I am this body, is called false ego. So therefore, the normal ego, that conception that you told, this is related to false ego. Because he thinks he is very smart. Smart means what? His bodily features are smart. His intellect is smart. His mental capabilities are strong. These are all dependent on his composition of gross and material subtle body. स्थूल और सूक्ष्म शरीर के ऊपर उसको ऐसा कंसेप्शंस हो रहा है कि आई एम स्मार्ट. That is false ego. So in a way, that ego conception is dependent on false ego. So false ego is fundamental identity within this world. False ego, I am a mother, I am a husband, I am a scientist, I am a manager, I am so, I am even. मुझे उस बात का अहंकार है कि मैं साइंटिस्ट हूं. ये अहंकार फॉल्स ईगो इतना ही सीमित नहीं है. मैं एक साइंटिस्ट हूं, ये मुझे अहंकार हो या नहीं, मैं साइंटिस्ट हूं, ये ऐसा समझना भी मिथ्या अहंकार है. क्योंकि मैं साइंटिस्ट, मेरे शरीर को वो एक रोल मिला है, मेरी बुद्धि के लिए वो शरीर को रोल दिया है, बट मैं हमेशा के लिए साइंटिस्ट नहीं रहूंगा. मैं साइंटिस्ट पहले नहीं था, एजुकेशन ले रहा था तब, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं साइंटिस्ट बना और उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो साइंटिस्ट नहीं रहूंगा, या मैं रेसिग्नेशन दे दूंगा, मैनेजर बन जाऊंगा.
So is it me? No, it's my false identity. It's not real identity. Real means real problems we saw. Real is related to eternity. So real identity, आप कैसे अभी when you are playing some drama, is there any artist here who plays drama? किसी ने कभी नाटक किया है? हाँ, घर में किया है. Okay. नाटक किया है बचपन में कभी स्टेज पे? हाँ, तो क्या रोल प्ले किया था? Princess. हाँ. So that princess is a temporary role. Now you have forgotten it. आपको वही डायलॉग आज बोलो तो याद नहीं आएंगे. But that was a designation temporarily accepted on a stage for some entertainment. वैसे ही now you are not princess. You have left that role. But somebody else will come and he has seen your drama. He says, देखो princess जा रही है. But that princess is temporary role. You are different than that role. Similarly, all our roles are different than who we are. We are spirit souls. हम आत्मा है, हम अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं. तो today's topic is, अगर if we are soul, then what is the life of a soul? In short, it is called as substance and shadow because the role is shadow and the substance is soul. Shadow exists because the person exists. Shadow doesn't exist if the person doesn't exist. Shadow is moving as the person is moving. Shadow has all characteristics of the original person. Most of them, all characteristics originated from the person. So similarly, our personality is fundamentally soul, and that is actually the substance of our identity. Substance. And the shadow is this material body, gross and subtle body. So what is substance and what is shadow? Substance is soul, material body is shadow, and substance is spirit soul. So now shadow related things, we know everything. Substance related thing, what it is. So we know of something called as material happiness. But what is soul's happiness? Material happiness comes in shadow. But material happiness itself, we are working so hard for it. Then what would be spiritual happiness? Because it is substance. It's not shadow. Can you embrace your child's shadow and feel same happiness as you embrace your child or your mother? Seeing the photo of your beloved one and seeing that beloved one face to face. There is a difference between shadow and substance. There is a difference. Of course, there is happiness. There is a reflection of happiness. You see, a mother sees the child's clothes drying somewhere and the child has gone to school. Seeing that dress also reminds her of her son and she feels something about it. But that is shadow. But the substance is factual relationship, factual exchange of loving reciprocations with the child. Are you getting my point? How much it is important to understand this right side, substance side. So what is spiritual happiness? What is material happiness and spiritual happiness? Material world is shadow. This whole world is shadow, and there is a spiritual world. So for us, the real world is spiritual world.
we experience this material world. How do we experience spiritual world? We are soul, we should experience spiritual world. So what is it? How is it experienced? That we want to see today. There are material relationships. What are spiritual relationships? There is material life. What is spiritual life? So today's discussion is about this. Because we know the left side, we have to buy spiritual instructions from our scriptures, understand what is substance or spiritual life. So let us start. Living in the material world is sometimes a story is told. Story of circus with ₹1. टिकट फॉर सर्कस इज ₹1 का टिकट सर्कस के लिए. ऐसा एक सर्कस था, तंबू था, जहां एंट्रेंस में एक व्यक्ति खड़ा था और he was shouting ₹1 circus, ₹1 circus, ₹1 circus. So a lot of people came, only ₹1 circus. Good, I want to see. There was a long queue. Then one by one person was taken inside and he was shown the circus. And then the person was getting out from the other side. Now everybody was coming to circus with anticipation. Inside story was different. Inside there was a different circus. There was a person who was beating ₹1 circus aspirant, black and blue, and saying ₹1 में सर्कस देखना है तेरे को, ये ले ऐसा वो बहुत पिटाई चल रहा था अंदर. और बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर पिटाई हो रहा है ₹1 में, क्योंकि एग्जिट गेट कहीं और था. तो अवर आचार्य जो भी परंपरा में है, they tell this story saying that the material world is something similar, a similar experience for soul, because soul has unlimited want of peace and happiness. He wants to always be blissful. What did we see in soul, this science of soul? What are the characteristics of soul? Sat, Chit, Ananda. Sat means eternity, forever, without death, unstop, non-stop. Chit means knowledge, unlimited state of knowledge with Ananda, unlimited happiness, non-stopping. Not a moment should go without any happiness. That is anticipation of a soul in its natural state. So it is a natural thirst for all of us, because it is our constitutional position. We deserve it, but our experience is opposite. We are not enjoying all the times, and we are not in knowledge all the times. We are sometimes our saintly people or guru vrinda, they say that temporary cessation of miseries is called as happiness in this world. One more example they give. You understood what I mean? थोड़े देर के लिए कुछ दिमाग में कटकट नहीं है, कुछ तो तकलीफ नहीं है, वो स्टेट मतलब हैप्पीनेस है. ऐसा है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं. हैप्पीनेस मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, कुछ त्रास नाही आहे, काही डोक्याला ताप कटकट नाहीये, म्हणजे आम्ही आनंदी आहे. डोकं दुखत नाहीये माझं, घरी काही भांडण झालेलं नाहीये, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, बस ठीक चल रहा है आज का दिन, आई एम हैप्पी. सो हैप्पीनेस इज समथिंग लाइक दैट. और द अदर एग्जांपल द आचार्यस गिव इज, इफ सम पर्सन इज उसका सर ऐसा पकड़ा और उसको पानी में डुबाया, ही कांट ब्रीथ, तो he wants to come out, he wants to come out. So उसको बहुत देर तक वैसा रखा, एंड जब वो मरने ही वाला है तब उसको ऊपर उठाया, तो वो श्वास प्रश्वास शुरू करता है और he feels relief. तो आचार्य से that this is happiness in material world compared to happiness of spiritual world. If we are happy in this
material shadow living, then just imagine what would be the substance of happiness in spiritual living. It should not be seen as, अरे मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं और कोई मुझे डुबा रहा है और मैं आई एम गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है. ऐसा मत इसका अर्थ निकालो, ये अनर्थ हो जाएगा. फिर इसका अर्थ ये है कि अगर मुझे ये ऐसा डुबाने वाला एक्सपीरियंस आचार्य बोलते हैं इस हैप्पीनेस को, तो क्या होगा फिर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू, we are wanting to live happily. That is the goal of our life. Why you are coming here? Why you are going anywhere? What is the purpose of life? Basically, foundational principle of living life is happiness. I want happiness. So all our activities are tuned for happiness. But when we search the happiness in shadow, then we are not getting the deserved happiness. So there is a conception of temporary happiness and there is a conception of spiritual happiness. So temporary happiness is that temporary relief that I was describing, and scriptures say that there are basically three ways of leading life, three ways of leading our material life. Bhagavad Gita explains this. So if we see all of us and all our activities in the time frame of life that we have lived, as well as we see our surroundings, we see that our conception of happiness and way of living fits into either of them, one of them, these three methods, these three ways. So now what we are doing is, there is shadow, there is substance. Within the shadow, there is a conception of happiness. Within substance, there is a conception of happiness. Now we are trying to see shadow happiness, how it is categorized in three. So these shadow happinesses are our happiness in current state without self-realization. What I define as happiness. What is my happiness now? What makes me happy? That is defined in Bhagavad Gita in three ways. So there is this conception of three modes of material nature: mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So basically people are mixture of mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. All of us have some sort of satvikta, mode of goodness, some sort of passion, mode of passion is rajogun, and some sort of ignorance, tamogun. All of us are either for some time in sattvagun, for some time in rajogun, for some time in tamogun, and it is continuous cycle. So Bhagavad Gita says sattvam rajastama iti gunaha prakriti sambhavaha. Sattva, raja and tama, these are prakriti sambhava. Prakriti हमने देखा last time. There are two prakritis. One is material nature, one is spiritual nature. अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम. भगवान बोलते हैं कि ये जो है अपरा प्रकृति, इससे परा प्रकृति एक आध्यात्मिक प्रकृति है. तो अपरा एंड परा. तो अपरा प्रकृति में मतलब ये प्रकृति हमारे अराउंड, हमारे भीतर, हमारे शरीर में, हमारे आजू बाजू में जो प्रकृति है वो तीन गुणों से बनी है. सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा. प्रकृति में ये तीन गुण है. निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम. देहे देहिनम हमने देखा, देहे मीन्स बॉडी, देहिनम मीन्स आत्मा. तो ये क्या कर रहे हैं? ये तीन निबध्नन्ति मतलब बद्ध कर रहे हैं, बांध के रख रहे हैं. किसको? अव्यय मतलब जिसको कुछ व्यय नहीं होता है, जिसका कोई डेथ नहीं है, डेथलेस सोल. इट इज गेटिंग बाउंड इनटू अ body made up of three gunas. So all of our bodies, gross as well as subtle, are made up of sattva, raja and tama combination. So for this, sattva has a particular way of living, rajo has a particular way of living, tamo has a particular way of living.
primarily meant for giving happiness in that mode. There is a happiness in mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. All they have different definitions of happiness. So basically, tatra sattvam nirmalatvam prakashakam anamayam. There is a side within us which is tatra sattvam, that is sattva. Tatra sattvam nirmalatvam. Nirmal matlab pure, purity of a person. He is pure. His character is pure. His behavior is pure. His intentions are pure. That is because sattva. Prakashakam. It is basically giving knowledge to that person. So if somebody wants to become knowledgeable, what he has to primarily develop? Sattva. So he has to eat in sattva gun, he has to think in sattva gun, he has to surround himself with literature and reading of sattva gun and people of sattva gun. So these are producing tatra sattvam nirmalatvam prakashakam anamayam. Anamayam means pure than others, illuminating and frees one from all sinful reactions. Anamayam. सिंफुल रिएक्शन से वो छुट्टी दे देता है. बेसिकली आवर डिस्ट्रेसेस आर आवर ओन डिजाइन्स ऑफ पास्ट सिंफुल रिएक्शन. सो वन हैज टू get freed from distress means what he has to do? Counteract his sinful reaction, effects of his sinful activities previously done. Counteracting is done by using sattva gun. If he develops sattva gun, his sinful reactions will go away. So his life becomes pure. Sukha sangena badnati, and he is bound by happiness. So material happiness is this. In general, people who are seen happy in this world, they are happy because they have been in mode of goodness in their past. They practiced such a life where they didn't harm somebody, they did charity to others, they helped others, they read some good things, they were philanthropic. किसी के लिए कुआं खोदा, किसी को पानी पीने की व्यवस्था की, पेड़ लगाए और बहुत दान धर्म किया, मदद की लोगों की. तो therefore he is enjoying in future, and this enjoyment may come after thousands of births also. तो इसलिए we miss the relationships. We see the person, he is not at all in goodness, but he is enjoying like anything, because his mode of goodness was present at some time, and then it is now seen, he is seeing the effects of that mode of goodness. But that is merely, today's life is merely the past reaction. Similarly, tomorrow's life is present reaction. So if he misuses his faculty, then he will suffer again. So it's not a justification for or proof for saying that mode of goodness वगैरह कुछ नहीं होता है, लोग तो enjoy कर रहे हैं. That is unscientific understanding, not correct understanding. So those situated in the mode of goodness become conditioned by sense of happiness, jnana sangena chanaga, and knowledge. तो मोड ऑफ गुडनेस में भी बांध दिया जा सकता है, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे. निबद्धन बदनाति बोला है, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानका. मतलब जो प्रकृति यहाँ पे है, इसमें जो सात्विक कार्य है, और उसको कभी कभी सात्विक लेवल का धर्म भी बोलते हैं. धार्मिक लोग भी बद्ध लोग हैं, ऐसा बोला है भगवान ने इस प्रकृति के साथ. ये आपके लिए शायद एक नया फाइंडिंग्स होगा. वो भी बंध जाते हैं. कभी कभी ज्यादा नॉलेज वाले सात्विक लोग किसी की भी सुनते नहीं. वो अपने सुख के मार्ग में इतने फिक्स रहते हैं कि उनको उससे ऊपर का कुछ देखना भी नहीं होता है. वो मानते भी नहीं इससे ऊपर कुछ होगा. तो बद्ध है. वो ऐसे ही है जैसे एक बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो दूसरा आइसक्रीम टेस्ट ही नहीं करना चाहता, करना ही नहीं चाहता. तो बद्ध है चॉकलेट की टेस्ट से, वो उससे परे जा ही नहीं पा रहा है. समझ में आ रहा है ना, बंधन सत्वगुण का. तो ये सत्वगुण है, बट ये तीनों में अच्छा है, तीनों में ये अच्छा है. दूसरा होता है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम.
तो इसमें दिस मोड ऑफ पैशन इज बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। अगर आपके हृदय में आपको दिखता है मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, मैंने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों किया, तो ये जो है पैशन है, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। रजोगुण का उत्पत्ति जो है वो डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स में होता है। तृष्णा संग समुद्भव तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिन। ये देही जो होता है, हम ये देह के साथ बंधन करने के लिए रजोगुण भी एक कारण है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, मुझे मत पूछो, मुझे टाइम नहीं है, बस मैं जा रहा हूं, मेरा काम है, मेरे काम से मैं मतलब रखता हूं, मुझे किसी से कोई संबंध नहीं है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, दैट्स ऑल। अरे आप अमेरिका में इतने बड़े जॉब में हो, इतना पैसा कमाते हो, कितना पैसा कमाओगे, और अपने पिताजी माँ का ध्यान रखो थोड़ा, मुझे टाइम नहीं है। आप कोई भी रख लो मेड, आप कुछ भी कर लो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतने प्रोजेक्ट्स है, ये सब, ये रजोगुण। अरे आपके पिताजी गुजर गए, अभी मैं नहीं आ सकता, वो आप क्रियाकर्म करो, मैं पैसे भेज देता हूँ। दिस इज मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। तो एक्सट्रीम केस, हम थोड़ा मिक्स रहते हैं, हम प्रायोरिटीज करते हैं कभी कभी, अगर उसका है तो नहीं जाऊंगा, इसका है तो जाऊंगा, लाइक दैट। तो दैट इज मोड ऑफ पैशन, वे ऑफ लिविंग, दीज थ्री वे ऑफ हैप्पीनेस। किसी को उसमें हैप्पीनेस है, उसको पिताजी बूढ़े हो गए, उसके साथ क्या कृष्णा कुछ वो क्या देने वाले हैं मुझे, उनके पास क्या मिलेगा मुझे, तो दे डोंट केयर, तो दैट इज देयर प्रायोरिटी, सॉरी। देन देर इज तमोगुण। तमोगुण इज तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि। सत्वगुण जो है ज्ञानमयम, प्रकाशमयम। तमोगुण इज अज्ञान, इसको कुछ भी पता नहीं है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना, illusion, it creates all kinds of illusions, and the person is प्रमाद आलस्य निद्रा भी तान निबध्नाति भारत। वो प्रमाद मतलब आपण म्हणत नाही का माज आलाय का तुला, माजलेले लोक प्रमत्त, म्हणजे एकदम माजल्यासारखं करायचं. समटाइम्स यू सी सम स्मॉल चिल्ड्रन, they don't care for anything. You have a very costly mobile, they will take, throw it away. That is that is tamagun. They will enter anybody's house, do destructions and come out. कभी कभी वो गैंग आता है ना, ये कोयता गैंग एंड क्या क्या गैंग आते, सब कार भी सब फोड़ तोड़ के आग लगा के चले जाते. दिस इज डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी, प्रमत्थ, प्रमाद, आलस्य. दारू पी के सब डिस्ट्रक्शन करेंगे, दारू पी के सो जाएंगे. निद्रा आलस्य, आलस्य निद्रा भी तान निबध्नाति भारत. उनको बोलेंगे अरे ऐसा क्यों लाइफ जी रहा है, ऐसा कर वैसा कर, they will say like that. So that is tamogun. So these three kinds of gaining happiness, as such, these are conceptions of happiness. They get happiness in that. One's happiness is others distress. So yeah, that is because of three combination of these three. So this is way. तो कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम. सुकृत अच्छे कार्य करने का फल अच्छा मिलता है, सात्विक कार्य करने का फल निर्मल होता है. सात्विकम निर्मलम फलम, इट्स वेरी प्योर. रजसस्तु फलम दुखम. सो हमारे जीवन में जो भी दुख है वो क्यों है, क्योंकि हम रजोगुण में कार्य करते हैं. सत्वगुण में जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है वो आनंद में ही रहता है हमेशा. रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो हमेशा ही दुख में चला जाता है. तो अगर हम दुखी है भौतिक प्रकृति में, तो उसका मूल कारण है हम रजोगुण हैं. वी आर रनिंग बिहाइंड सर्टन थिंग्स विच आर टेम्पररी. तो हम आगे देखेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज मटीरियल हैप्पीनेस, and that is called as material life. Material life means all this, all these pursuits. But ultimately what we get out of these three ways of living,
कोई बोलेगा क्या सिर्फ पुस्तक पढ़ने, कीर्तन करना, दूसरों को मदद करना, इसमें पैसा कमाना नहीं क्या आपको? बोलते हैं ना लोग, मंदिर में क्यों रहते हो, क्या कुछ दूसरा काम नहीं है? सब जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ आके बैठ गए, हरी हरी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लोगों को भगवत गीता पे प्रवचन दे रहे हैं। क्या होगा इससे? काम करो, पैसा कमाओ, फुकट का दूसरे का लेके क्यों जीते हो? तो दिस इज कॉल्ड फाइट बिटवीन सत्वगुण एंड रजोगुण। तो सत्वगुण वाले को एक्सप्लेन करना रजोगुण वाले को इम्पॉसिबल हो जाता है, और रजोगुण वाले को तमोगुण वाले को इम्पॉसिबल हो जाता है। और हमारे में क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिलेशनशिप्स में, मटेरियल रिलेशनशिप में? इसका 80% सत्व है, 20% रज है, 10% तम है, और उसकी वाइफ का 30% सत्व है, 60% रज है। तो बोलेगी क्या, उठो भागो, हे आलसी कहीं के। उसका सत्वगुण भी आलस लगता है रजोगुण वाले को। तो अल्टीमेटली इन सब से क्या होगा, ये भगवत गीता बोलती है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। कौन प्रोग्रेस कर रहा है लाइफ में? भगवत गीता बोलती है ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, प्रोग्रेस पाथ पे कौन जा रहा है? सत्वस्थ। सत्वगुणी व्यक्ति अल्टीमेटली ऊपर की ओर जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है वो मध्य मतलब जहां है वही रहेगा। और जघन्य गुण प्रवृत्तिस्थो, जघन्य अपराध बोलते हैं ना, एकदम एकदम लोली, किसी को जला देना, मार देना, ये टाइप के एक्टिविटीज, दारू पीना, मांस खाना, दूसरे को काट करके अपना पेट भरना, ये जघन्य गुण वृत्तिस्थो अधोगच्छन्ति तामसा। वो लोग अधो मतलब नीचे जाएंगे, धीरे धीरे वो तमोगुण में नीचे नीचे नीचे। और ये एक्सपीरियंस होता है ना, कोई आलसी है, सोता रहता है, तो प्रोग्रेस करेगा ही नहीं। कोई बहुत पीछे चीजों के, वो इतना पीछे भागता है टेम्पररी चीजों के कि उसने ना तो ठीक खाने पीने का उसको ध्यान है, ना तो आराम करने का ध्यान है। वो क्या होगा? बीमार गिर जाएगा। उम्र 60 होते 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 वो इतना पैसा कमाएगा कि 60 में उसको ऐसा रोग होगा कि 62 में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो क्या प्रोग्रेस किया? जनरली दिस हैपेंस, यू सी द सेलिब्रिटीज, उनका ओल्ड एज बिकम्स हेल्थ। तो वो दिखता है, वो वहीं रहते हैं, पैसा रहता है उतना ही, कुछ कर नहीं सकते, और वो सारे लोगों को भी अपने जीवन से हटा देते हैं, तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं रहता। कितना तो न्यूज आता है, ये सेलिब्रिटी घर में अकेला ही मर गया, इधर हुआ था एक तळेगाव मध्ये, महाजनी, रवींद्र महाजनी। दिस इज एविडेंट, they become lonely. Many top achievers become lonely in their life, frustrated, empty within, nobody loves them, they love nobody. What they will do? So it's a misery, even though they have a lot of resources. वस्तु है पर व्यक्ति नहीं है, और व्यक्ति मटेरियल रिलेशनशिप्स भी नहीं है, तो whom will he show? Everybody will say क्या arrogant है, क्या करेगा पैसा लेके, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे। People will think like that. So he will not become happy. So ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण प्रवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। So these are shadow living options. Tell me any other option in your material life. You have any other option? These are choices. Of course, those choices are like, आपके लिए चाइनीज भी है, आपके लिए इंडियन भी है, आपके लिए गुजराती भी है। एक शादी में आपको सब कुछ पसंद है, पानी पूरी भेल भी है, अभी आप कॉम्बिनेशन करके आपको जितना चाहिए ले लो। तो मोड ऑफ गुडनेस है, मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है, आप अपना कॉम्बिनेशन बना के आप जियो, भगवान ने वो प्रकृति में व्यवस्था किया है। नाउ आवर क्वेश्चन इज, सब्सटेंस क्या है? दिस इज शैडो, दीज आर ऑप्शंस। यू हैव एनी अदर एला कार्टे मेन्यू? एला कार्टे मेन्यू क्या होता है पता है ना? यू डिसाइड, ये लेना है, वो लेना है, ऑर्डर करना है। ऐसा नहीं कि एक जैन थाली मंगाया सब कुछ है उसमें, ऐसा नहीं। यू कैन चूज व्हाट यू वांट। सो आर यू फाइंडिंग इन योर लाइफ टुडे एनी अदर ऑप्शन देन दिस एला कार्टे मेन्यू?
है कि नहीं है? नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इसका मेन्यू का सारा डिटेल्स देखना है, कंपोजिशन क्या क्या चाइनीज में क्या क्या डाला है, कैसा रेसिपी है, तो 14 चैप्टर ऑफ भगवत गीता पूरा डिटेल में देगा आपको क्या क्या रेसिपीज है इन सब गुणों का। देखिए भगवत गीता हाउ ब्यूटीफुल इट इज, इट टेल्स यू अबाउट योर ओन लाइफ, ऑल थिंग्स। तो नाउ शैडो से हमें सब्सटेंस में जाना है, मटेरियल बॉडी वर्सेस स्पिरिचुअल बॉडी। तो मटेरियल बॉडी इज टेम्पररी, स्पिरिट सोल इज परमानेंट। Similarly, your menu there is temporary offerings and spirit soul level is permanent. Material body is filled with stool and vomit, blood, everything. Spirit soul is Satchidanand. So you want to enjoy bodily or you want to enjoy spiritually. Material body is skin deep illusory beauty. Soul and God have true beauty. So this is the difference. This is the shadow versus substance. It is said, "Kalosmi lokakshaykrit pravruddho लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः." भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, "The bodies of beauty queens who in their youth make men go crazy become dried up in old age like grapes turned into raisins. Why can't the beauty of the world remain permanent?" तो आपको एक ऑप्शन है सच्चिद आनंद बॉडी प्राप्त करने का। ऑल ऑफ अस वांट दैट। वी आर इटर्नली नॉलेजेबल एंड वी आर इटर्नली हैप्पी इन दैट नॉलेज। दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, रियल पोजिशन। हम बोलते हैं ना, अरे हमारे घर में सब सुख सुविधा है, अभी यहाँ आया ना सब हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। I don't know whether somebody has lived like that. या कोई मायके से ससुराल में आते, मायके में हमारे ये सारा सब था, अभी ससुराल में ये सब। संत तुकाराम महाराज बोलते हैं, कन्या सासुर्यासी जाए मागे वळूनी पाय। अभंग एक, वो इसका रेफरेंस किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? कन्या जो माहेरवरून आलेली कन्या जी आहे, ती आध्यात्मिक जगातून आलेला भौतिक जगातला जीव आहे। तिला सासुरवास है इथे, कारण अब मराठी सब समझते हैं ना, कोई है जिसको नहीं समझ रहा है? सबको समझते हैं ना। तो बेटी ससुराल में गई तो उसका लाइफ थोड़ा टफ है, ऐसा सबको लगता है, उसको भी लगता है, घर वालों को भी लगता है। और वो जब घर जाती है तो आराम से सोती है, आराम से माँ उसको खाना पीना सब कुछ पेड़ पे ला के देती है। तो वो दिन अलग है, ये दिन अलग है, हमेशा ही वो लगता है। आई डोंट नो, you should tell this, but similarly we have made a choice where we have left a very happy state and we have come to a very bad shape. So there is a natural inclination within all of us to be in that state, but can we get it here? भले ही सत्वगुण का व्यक्ति है, ये नहीं होगा उसके साथ, इसीलिए वो सत्वगुण भी बंधन में डालने वाला है, जन्म मृत्यु की। There is the story of liquid beauty. There was a very beautiful young woman in a village, and there was a prince. Once he was roaming around his kingdom, that prince saw this lady, and she was so beautiful and charming. He got really attracted to her, and then he approached. He was a prince. He approached her. He said, I am attracted to you. He proposed, I am attracted to you. You are so charming, beautiful. Are you unmarried? Can you get married with me? So she was a very knowledgeable girl, and she had a lot of wisdom. She understood this guy is simply attracted to my external beauty. He is not attracted to me really. He is only attracted to external bodily features, not the person as such. So she wanted to test him.
What did she do? She said, you come after 2 weeks and then again we'll decide at that time. Then she took some purgatives, and she had a diseased state where she started to vomit and pass stool. All of that vomit and stool she stored in a pot. It may sound obnoxious, क्या बता रहे हैं प्रभु जी, कैसा story बता रहे, but she collected all of that, and within 2 weeks she became so lean and so fragile and so ugly looking. Then that prince came after 2 weeks. He asked, there is a girl here. He asked that girl only, and she is very beautiful. I want to meet her. She said, I am that person. Oh, how come? It is not possible. You looked so beautiful. How come you are looking like this? So she said, all of my beauty you want to see? You go, there is a pot. See that pot. That is my beauty. Now you want to get married with me? He ran away. So a spirit soul who has come from spiritual world is something similar. He got, that's a whole different subject, how we came from spiritual world to material world. But this is the essence of it. We got attracted to temporary, or we wanted to go away from permanent. वो लड़की का स्वभाव उसके साथ रहने वाला है, बट उसका ब्यूटी रहेगा कि नहीं पता नहीं. बुढ़ापे में तो ब्यूटी नहीं रहेगा तो छोड़ देगा क्या? So the person is important, person is long term, beauty is short term. Similarly, our hearts have some attraction somewhere. This is what we learned from this story, that we are attracted to temporary, these prakriti things, sattva, raja, tama, but we are neglecting our own substance, which is our own heart and our own soul. So beauty is not in the material body, it is just bag of bones, flesh, blood, urine, stool. Beauty is in the spirit soul. You see, when spirit soul leaves the body, immediately dead body starts looking ugly. It doesn't look beautiful, however beautiful that person may be. Immediately it looks horrible. Because spirit soul is there is beauty in that body. Otherwise, there is no beauty. And it is part and parcel of God, therefore it is beautiful. So harsh reality that we saw in Vedas, the privilege of humanity, when the soul leaves body, we don't want to stay near that body. It becomes stinking, obnoxious, it looks bad, it is horrible to see. Nobody can stay near that body. So this soul, actually, it has come from spiritual world, it is said. Where does the soul come from? Due to envy and the desire to enjoy independent of the Supreme Lord, the soul is sent to this material world, which is like a prison house. So here, why we are suffering? Because it's a jail. We agree we are suffering with all Janma Mrityu Jara Vyadhi and Adhibhautik Adhidaivik Adhyatmik Klesh. So it is not required. Is jail required? Not required. But why do we have jails? Because some persons want to go to jail. So we are those people who want to live in a temporary atmosphere. It's with us, not with somebody else. Criminals are criminals by their choice. So in the eyes of God, somewhere we have to accept that we made some crime. That is, it is called spiritual world from which we have fallen down by doing certain misjudgment, miscalculation, whatever you call it, some mistake, by which we have fallen down from this beautiful place where we will be eternally playing with God, eternal relationship with God. So the soul originally belongs to the spiritual world. There are infinite souls who are eternal servants of the Supreme Lord in the spiritual world. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo vidadhati kaman. This is Katha Upanishad.
There are millions and trillions of living entities, but there is one living entity, God, who is supplying the necessities of all the others. So soul is part and parcel, and it is coming from God, and God is supplying all the necessities to us. So this is actually our origin, this is our connection, this is our eternal relationship. It is with God directly. When the soul leaves the spiritual world and comes to material world, he forgets his true identity as soul and foolishly thinks himself to be the material body made up of flesh and bones. So this is a shadow coming from that substance. So we have forgotten. Janasya mohoyam aham mameti. Means people in general, their moha means illusion is who am I and what is mine. Aham means me and mama iti, mera. So what do you think aham, I am, and what do you think is yours? Is all illusion in shadow. In substance, it is not illusion. So we become attracted to the glittering illusion of false beauty of the objects of material world. Material beauty is simply a poor imitation of the spiritual beauty. We'll see this. If we realize our Swarup, it is called Swarup Siddhi. When we by spiritual life, spiritual practice, obtain our spiritual identity, then we will vomit at how we look in this body. I am that and I am into this. We'll feel like that. It is so beautiful. The real identity of all of us is so charming and so beautiful. But we are getting attracted to temporary, and we are brought down by primarily three forces: Kamah, Krodha, Tatha Lobha. Trividham Narakasyedam Dwaram Nashanam Atmana. नाशनम आत्मनः मीन्स आत्मा का विनाश. आत्मा का विनाश करने वाली तीन द्वार है. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम मतलब द्वार मतलब द्वार है. नाशनम आत्मनः आत्मा का विनाश करने वाले तीन द्वार है. कामः, क्रोधः तथा लोभः. तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत. ये आत्मा का विनाश करने वाले, नरक में लेके जाने वाले तीन द्वार है, इसीलिए इन तीनों को छोड़ दो, भगवान बोल रहे हैं. तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों, अब मैंने जो तीन प्रकृति के नेचर्स बताए उसमें अलग अलग रूप धारण करते हैं. सत्वगुणी व्यक्ति का काम, क्रोध, लोभ अलग है. रजोगुणी व्यक्ति का काम, क्रोध, लोभ अलग है. तमोगुणी व्यक्ति का काम, क्रोध, लोभ अलग है. एंड ऑल ऑफ अस are running behind in particular modes, choosing our own dish. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए. काम हो. सत्वगुण वाला बोलता है मुझे ये पुस्तक चाहिए, फिर बोलता है ये पुस्तक नहीं, अभी इसके ऊपर वाला ये पुस्तक चाहिए, फिर ये पुस्तक चाहिए, या मैंने आज इतनी मदद की, मैं कल उतनी मदद करूंगा. इसमें वो जाता है. काम, उसका ये काम अलग स्तर का है. इसमें पाप नहीं है तो इसलिए दुख नहीं है, परंतु इसमें बंधन है भौतिक जगत के साथ, क्योंकि ये सब रिलेशनशिप विद बॉडी. इट्स फॉरगेटिंग ओरिजिनल आइडेंटिटी. इट्स सेम लाइक अ policeman finding a child somewhere crying and feeding him, but not uniting him with original father. That is missing in Sattva-gun. That is the difference. So we fall down with this. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु हमें लूट लेते हैं. ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं. ये जैसा दिखा रहे हैं ना, भगवान के धाम से हम नीचे कैसे जा रहे हैं, वो वैसे ही. और वहां पे एक सन्यासी बेचारा खड़ा है, वो बोल रहा है वो उधर भगवत धाम है, उधर चलो. ये लोग उधर देख भी नहीं रहे हैं. बिकॉज प्रिसाइजली है कि नहीं, we check within our own hearts also. We don't have time means this. We don't have time for spirituality means this. Where are you going? What is your dish? What is it made up of? इसको तो सोचो. इसमें क्या प्राप्त होगा वो तो सोचो. इसमें प्रगति है कि अधोगति है वो तो सोचो.
ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। मध्य तिष्ठन्ति मतलब जो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉयमेंट कर रहा है, उधर ही है वो, उसी लाइफ में, तो उधर ही रहेगा वो प्रिंसिपली। उसके पैसे ऊपर नीचे होंगे, बट उसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस उतना ही रहेगा, एंजॉइंग विथ हिज फैमिली। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जघन्य गुण प्रवृत्तिस्थो, काम के पीछे, लोभ के पीछे जो नीचे आ रहा है, वो नीचे 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 नरक की ओर जाएगा, भगवान से उतना दूर जाएगा, उसको चढ़ना उतना मुश्किल भी होते जाएगा ऊपर। अगर कोई बहुत बड़े ट्रेकिंग के लिए कोई गया है क्या? डिफिकल्ट ट्रैक के लिए गए? डिफिकल्ट ट्रैक विदाउट स्टेप्स, स्टेयरकेस। यहाँ पे घोरावड़ेश्वर है, हम जाते हैं कभी कभी उधर ट्रेकिंग के लिए। वहां पे एक सीढ़ियों वाला मार्ग है, वो एक मीडियम डिफिकल्टी वाला है, एक बहुत डिफिकल्टी वाला है। तीनों से गया हूं मैं। बहुत डिफिकल्टी वाले मार्ग से अगर थोड़ा भी छिटक गए तो बहुत बड़ा फॉल हो जाता है। मीडियम वाले से थोड़ा सा फॉल हो जाता है। स्टेयर केस से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उधर ही गिर जाएगा वो, ज्यादा नीचे नहीं आएगा। आ भी सकता है नीचे गड़गड़, खाली मणि हो सकता। परंतु तमोगुण में अगर हम हैं तो हमारा फॉल बहुत बड़ा नीचे जाता है, बहुत नीचे लेके जाता है हम। रजोगुण वाला है जो थोड़ा सा मैनेजेबल हो सकता है। सत्वगुण में काफी सुरक्षित होता है वो व्यक्ति, वो ऊपर जाता है भगवान की चेतना की ओर। तो नाउ समटाइम्स वी आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस कि वी आर इन जेल। हम जेल में हैं क्या? जेल में है तो ये सब होना चाहिए। जेल मतलब मटेरियल वर्ल्ड अगर बोलेंगे तो जेल कीपर कौन है? माया देवी, जो प्रकृति बोलते हैं, जो बदनाती बांध के रखा है, बोला ना, त्रिगुणों की रस्सी से बांध के रखा है हम सबको। तो फूड क्या है? भौतिक ये जेल में खाना भी होता है ना, जेल का खाना। वो जेल का खाना इधर के खाने से अलग होता है ना। तो जेल का खाना इस केस में क्या है? हम्म हम्म ओके ओके ओके। फूड, मेडिसिन, जाने दो। चेक्ड शर्ट एक जेल के लिए ड्रेस होता है ना, क्या होता है वो? Our body is that dress. Whoever has material body made up of flesh, bones and basically gross and subtle body, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसका मृत्यु होगा। तो वो जो शरीर है, वो शरीर जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि ये आत्मा जेल में है, ये आत्मा जेल में है, ये सारे जो शरीरधारी जीव है वो सारे जेल में है। वैसे ही विप्स क्या है? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हमेशा हमारे ऊपर आघात होते रहता है। दोज आर विप्स। रिलीज क्या है? मुक्ति, मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। स्टे इन स्टेट, लॉज ऑफ स्टेट, ये सब क्या है? स्टे इन स्टेट मतलब प्रिजन से बाहर आके रहना। वो रिलीज हो गया, प्रेसिडेंट ने उसको बोल दिया जाओ अभी जेल में रहने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल लाइफ में आ गया। तो स्टे इन स्टेट मीन्स स्टे इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लॉज ऑफ स्टेट मीन्स स्क्रिप्चरल लॉज, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, पुराण, ये सब लॉज है। लॉज अगर फॉलो करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट भगवान, या प्रेसिडेंट बोलो कुछ भी, भगवान। तो ये सब रिलेशनशिप्स हम देखते हैं। इसमें मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, is there any mention of material world versus spiritual world? In Bhagavad Gita it is giving this analogy: urdhva moolam adhashakham
अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्. In the material world, in this world, there is urdhva moolam adha shakham. Have you seen such a tree? ऊर्ध्व मूलम मीन्स जिसके मूल ऊपर है, अधः शाखम मतलब उसका शाखा जो है नीचे की ओर है. ऐसा कोई पेड़ देखा है क्या? समझ में आ रहा है ना? ऊर्ध्व मूलम जिसके मूल ऊपर की ओर है, पेड़ नीचे की ओर है. ऐसा कोई पेड़ है? हम जितने पेड़ देखते हैं उसमें ऐसा कोई पेड़ है क्या कि जिसकी मूल ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे है? यहां पे दिखाया है ऐसा पेड़ पिक्चर में. रिफ्लेक्शन है. ये जो शैडो है ये मटेरियल वर्ल्ड है. बट एट द सेम टाइम सपोज दिस इज अ मैंगो ट्री एंड देयर इज अ हैप्पीनेस इन ईटिंग मैंगो. कैन यू गेट दैट हैप्पीनेस by seeking mango from shadow? Does shadow or reflection have mangoes? Yes, reflection has mangoes. Can you go and catch a mango and eat it? Exactly this happens with us when we are trying to seek happiness in this material world. We'll see that. But there is a spiritual world where na tad bhasayate suryo na shashanko na pavakah yad gatva na nivartante tad dham paramam mama. Dham matlab abode. That supreme abode of mine is not illuminated by sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Yad gatva. Once you go there, na nivartante. You will not come back. जैसे आप किसी अच्छी जगह पे जाओगे तो फिर बुरी जगह पे वापस क्यों आओगे? उसी प्रकार ये जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन एक वास्तविक पेड़ का है. Why a tree in reflection is visible? Because there is an actual tree. Similarly, whatever you see here has an actual presence in spiritual world, and the real fulfillment is not in material world but in spiritual world. So seeking happiness in reflection is crazy. You will not get it. That's why Krishna defines it as dukkhalayam ashashvatam. It is full of miseries and not permanent. Ashashvatam, temporary. However you run behind happiness, you will still go on running behind it. है कि नहीं? Some yes, real mango tree on the bank of a river, but upside down, perverted reflection. So mango tree in reflection we are seeking, we are chasing behind. So therefore there is this material versus spiritual happiness analysis for us to decide. Now our decision is in what? प्रकृति, सत्व रज तमो गुणों का. अभी हमें अगर वो अगर बोला गया कि वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन है, उसमें मत जाओ, वो क्रेजी है. कोई बोलेगा कि ये कैसे क्रेजी है, मुझे तो आनंद मिलता है उसमें. होता है क्या ऐसा? वाई डू आई, मुझे आप बोल रहे हो मैंगो 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 तो मैं खाता हूं ना. मैंगो सीजन में मैंने हापुस आंबा खाया है. क्या बोल रहे हो, उसको टेस्ट नहीं है? मुझे तो टेस्ट लग रहा है. इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर भगवान देते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. बहुत इंपॉर्टेंट एक तत्व है भगवत गीता का. ये बहुत ही पावरफुल गाइडिंग प्रिंसिपल है स्पिरिचुअलिस्ट के लिए, स्पिरिचुअल सीकर के लिए. क्या बोलते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा. ये ही मतलब जो भी, ये ही whatever. Bhogaha means enjoyment. You feel how it is designed.
कृष्णा इज रिवीलिंग द फैक्ट। ये ही संस्पर्श, जा मीन्स जन्म होना, स्पर्श के साथ जिसका जन्म होता है, भोगा, वो एंजॉयमेंट। स्पर्श किसका? इसका भी भगवत गीता विवेचन करती है। स्पर्श क्या है? ये स्पर्श बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श या मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्याम ताम स्थितिक्षस्व भारत। प्लीज लिसन दिस प्रिंसिपल वेरी वेरी केयरफुली विथ योर हार्ट, because this is the principle of this session. If you understand this, you will understand what is the difference between substance and shadow, and what is the difference between substance happiness and shadow happiness. I said ये ही संस्पर्शजा भोगा, स्पर्शजा, we are trying to understand स्पर्शजा, स्पर्श से जिसका जन्म होता है, भोगा means enjoyments, either happiness or distress, or both in भोगा। हम बोलते ना ये ऐसे भोग है मेरे नसीब में, भोगा। तो कैसे बनाते हैं भगवान उसको? ये टेस्ट जो आ रहा है उसका टेक्निक क्या है भगवान का? वो टेक्निक बोल रहे हैं भगवान कि आपको आम खाने में आनंद किस प्रकार का आ रहा है, उसका नेचर क्या है। बोल रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा मीन्स इंद्रिय, और मात्रा स्पर्श मीन्स विषय वस्तु। विषय और इंद्रियों के संपर्क से, जिसको बाह्य स्पर्श भी बोला है, क्या उत्पन्न होता है? शीत उष्ण, ये फीलिंग उत्पन्न होता है। हम जब स्पर्श करते हैं तो शीत है कि उष्ण है, इसका फीलिंग आता है। और वो फीलिंग सिर्फ त्वचा के लिए नहीं है, जिह्वा के लिए भी है। जिह्वा का स्पर्श आम के साथ हो रहा है। अगर आपके जिह्वा के ऊपर आपने बहुत गर्म पानी डाल दिया, जिह्वा ऐसा जले जैसा हो जाएगा, फिर आम खाओ, सुख होगा? नहीं होगा। तो सुख कहां पे महसूस हो रहा है? संस्पर्शजा भोगा। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संपर्क से शीत उष्ण सुख दुख, ये सब फीलिंग्स केमिकली तैयार होता है। इट्स अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम सुख मानते हैं, इसीलिए किसी को आम पसंद होगा, किसी को पसंद भी नहीं हो सकता। तो वो सुख है कि दुख है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो आम और आपकी जिह्वा डिसाइड कर रही है कि कुछ सूक्ष्म प्रकृति डिसाइड कर रही है? सूक्ष्म प्रकृति का खेल है, ये मन का खेल है। मन उसमें विचरण करता है, मन उसमें आनंद की व्याख्या करने लगता है। इसमें आनंद है, इसमें आनंद नहीं है, ये मन गढ़ंत है, भगवान बोल रहे। इसीलिए तो फिर से वो उदाहरण देता हूं, कोई अगर मर गया घर में तो गुलाब जामुन अच्छा भी लगता रहेगा, टेस्टी, तो खाने का मन नहीं करेगा और उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मन में है। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इसमें कोई भी सुख नहीं है, मन इसको सुख और दुख बनाता है। इसीलिए किसी को एक चीज पसंद है, वही चीज दूसरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मन ने ये व्याख्या की है कि मेरा जो सुख है इसमें है, मेरा सुख इसमें नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे, जब मैं अच्छे सात्विक घी में पूरी तलता हूं तो बहुत लोग बोलते क्या बदबू आ रही है, और वही लोग मांस को बनाते हैं तो वो बोलते क्या खुशबू आ रही है। यही है सत्व रज का खेल। यही, किसी को तीखा तीखा अच्छा लगता है, कोई तीखा एक निवाला खाता है तो क्या बना है क्या बना है, ये नहीं, मैं नहीं खा सकता, ये कितना बुरा है, उसको दुख देता है, और किसी को वही सुख देता है। तो ये सब मन का खेल है। और इसमें जिसको एक जीवन में एक चीज सुख का स्रोत लगती है, पर वो उसका अनुभव उसको दुख प्राप्त करा के देता है, वो दूसरे जन्म में उसी सुख की चीज को दुख करके डिफाइन करता है।
समझ में आ रहा है? टेम्पररी नेचर। इसीलिए भगवान इसको क्या बोल रहे हैं कि अरे ये सारा झमेला जो है ना, ये दुख की योनि है। अल्टीमेटली इसमें दुख ही प्राप्त होने वाला है। कभी कभी देखते हैं डायबिटीज हुआ है पर उससे मीठा छूटता ही नहीं है। उसको इतना बीमारी हुआ है कि उसको दारू मत पियो बोला है, फिर भी वो दारू रोक नहीं पा रहा है पीना। भगवान बोल रहे हैं ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुख योनय एवते। ये दुख की योनि है। योनि मतलब जहां से उत्पत्ति होती है। तो जो भी आप ये स्पर्श सुख बोल रहे हो, ये तो जिह्वा का हो या स्पर्श इंद्रिय का हो या सुनने का हो या सूंघने का हो या देखने का सुख हो, ये सारे सुख उसका परिवर्तन किस में होता है? दुख में होता है। ऐसी प्रकृति है। दुख योनय एवते, अल्टीमेटली दे एंड अप इन मिजरी। आप जो गुलाब जामुन खाते हो उसका क्या होता है बाद में? पेट के अंदर। और वो जो पेट के अंदर से बाहर निकलता है वो दुख है क्या सुख है? प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो भी आप खाते हो, जो भी एंजॉय करते हो, किसके लिए होता है वो? शरीर के लिए। शरीर का अंत दुख में ही होता है कि सुख में ही होता है? शरीर कोई भी हो दुख से ही मरता है। तो दुख योनय एवते, वो दुख की उत्पत्ति करने वाला है। आप खाओ पियो, 4 गुलाब जाम 5 गुलाब जाम खाओ, छठे में दुख उत्पन्न होगा। 7वां खा लोगे तो उल्टी हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। दुख योनय एवते। क्यों? भले फिर सुख क्यों? सुख वो टेम्पररी है, फिर भी वो सुख इंटॉक्सिकेटिंग है। आई वॉन्ट दैट एंड आई कैन गिव अप होल ऑफ माई लाइफ टू रन बिहाइंड इट। है कि नहीं? मुझे चाहिए वो सब, इसीलिए मैं तो भाग रहा हूं। भगवान बोलते हैं मैंने एक ट्रिक डाला है उसमें, इसीलिए भाग रहे हो। आद्यंतवंत, उसमें एक आदि और अंत मैंने छोड़ा है थोड़ा सा। ये जो सुख है ना, उसका एक आदि है, शुरुआत होती है उसकी, बट उसका अंत हो जाता है। आद्यंतवंत, ये भगवान डिजाइन, भगवान का डिजाइन है ऐसा। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु, मतलब न मतलब नहीं, तेषु उनमें, रमते रममाण होते हैं, बुधा बुद्धिमान लोग, जिनकी विवेक शक्ति और चेतना प्रगत है, वो ऐसे खेल में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करते। वो भागते ही नहीं इसके पीछे उतना। एक चीज के पीछे भागना अलग चीज है, उसमें आनंद लेना अलग चीज है, और शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह करने के लिए आवश्यक चीजों को प्राप्त करके उनको शरीर को देना, ये अलग चीज है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप शरीर ऐसा दुख का योनि है इसलिए बस मर जाओ, ये नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि आपकी सुख की उपमा उसमें मत करो, रममाण मत हो उसमें। रमते शब्द लिखा है वहां पे। जब एक छोटी बच्ची अपनी माँ को देखती है कि वाह क्या मस्त बढ़िया किचन माँ ने सजाया है, मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ऐसा गैस सिलेंडर, वो शेगड़ी और उसमें वो तवा और वो सब कुकर, ये सब चाहिए, मैं भी कुकिंग करूंगी। माँ कितना अच्छा कुकिंग कर रही है, मुझे भी करना है। तो माँ क्या करती है? उसको एक्चुअल देती है खेलने के लिए, एक छोटा सा बना के देती है। पर जब भूख लगती है तो वो क्या, वो खाना चलेगा उसका बनाया हुआ? भातुकलीचा खेळा मधली राजा आणि राणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला अधूरी एक कहानी। क्या सुंदर लिखा है कवि ने। ये राजा राणी, हम वैसे ही राजा राणी है। अर्ध्यावरती डाव मोडला, डाव मोडतो ना तो, आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। इसीलिए उसमें रममाण नहीं होना है। ठीक है थोड़ी देर के लिए चल रहा है, चलने दो, अपना बुद्धि उतना विकसित नहीं है, परंतु ये प्रिंसिपल भगवान बोलते हैं, इसीलिए बुद्धा बोलते हैं, जिसकी बुद्धिमत्ता है। जो बुद्धू है उसको तो समझेगा ही नहीं ये सब, परंतु ये सब जानने, सोचने, समझने की, चेतना को ऊपर लाने की मनुष्य योनि एक
अपॉर्चुनिटी है. ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, you are discriminating this. Now this is process of purification and a higher choice. So that higher choice is spiritual choice. You are now upgrading yourself from material happiness to spiritual happiness. You no more play with balloons. As a child you may play, but now you are grown up. So human consciousness is coming through a reincarnation and giving you that kind of opportunity where you can discriminate like this. And it's the stage where the small child no more is attached to that small playing thing. अभी वो ग्रेजुएट हो गई, अभी वो ऊपर, उसका एज ऐसा हो गया कि वो अभी चपाती बनाना शुरू किया, राइस बनाना शुरू किया. तो वो भगवान बोल रहे हैं कि ये नतेषु रमते बुधा, वो बच्ची है इसलिए उसमें है. वैसे ही सारी प्राणियों की योनियां जो है उसमें है, सुख ढूंढ रहे हैं टेम्पररी इसमें. पर तुम्हारी जो भूख है वो इटर्नल सुख की है, वो ऐसी टेम्पररी की नहीं है. तुम सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक तुम उस सब्सटेंस हैप्पीनेस को चखोगे नहीं. तो इसीलिए भगवान बोलते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा. इन सब बाह्य स्पर्शों से असक्त. आसक्त मीन्स अटैच्ड, असक्त मीन्स डिटैच्ड. असक्तात्मा, बाहर की इंद्रियों में वो रममाण नहीं हो रहा. अभी वो ऊपर है उसकी चेतना, अभी वो समझ रहा है. अभी समझने के बाद वो क्या हो गया, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, उसमें रममाण नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या सन्यासी लोग क्या खाते पीते नहीं है? ऐसा नहीं है बोला यहाँ पे. या वो क्या वो अभी मेरे हाथ में देखो एक बहुत अच्छा सेंट लगाया हुआ है, स्मेल. ये सेंट कहां से आया? भगवान को जो यूज किया वो सारे भक्तों को सुबह आरती के समय देते हैं, वो लगा के देते. तो क्या मैं ये एंजॉय नहीं कर रहा मैं, परंतु ये अलग है. मैं ये अत्तर के पीछे मेरी जिंदगी पूरी उसी में नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं, उसमें रममाण नहीं हो रहा हूं मैं मेरा गोल अलग है, मेरी समझ अलग है, मेरी चेतना का स्तर अलग है. मैं इसको सर्वस्व नहीं मानता, मैं इसके लिए प्रायोरिटी पूरा उसी में नहीं रहता. सारे इंद्रियों के बीच में हमारा हर एक इंद्रिय का कुछ प्रायोरिटी बनाते हैं हम, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. बट वो एक सस्टेन शरीर यात्रा पीछती, शरीर यात्रा के लिए जो चाहिए प्रसिद्धेत न अकर्मणा, वो कर्म करते रहो भगवान बोल रहे हैं. जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है दैट इज ओके, दैट इज नॉट निग्लेक्टेड. बट जो असक्त है उसमें अपनी व्याख्या नहीं कर रहा है कि ये मिलेगा तो ही सुख है, ये नहीं मिलेगा तो नहीं सुख है. ये सब उसमें नहीं जा रहा. हो जरूरत है उतना ले लो. विंदति आत्मनि यत् सुखम, जो आत्मा में जो सुख का अनुभव स्टार्ट कर देता है उसका क्या सुख का व्याख्या देते हैं भगवान? स ब्रह्म योग युक्त आत्मा. एक है आत्मा, एक है योग और दूसरा है ब्रह्म. ब्रह्म योग युक्त आत्मा. ब्रह्म योग युक्त आत्मा मीन्स जो ब्रह्म मतलब भगवान, योग मतलब उनके साथ संपर्क, युक्त होना मतलब कार्यों में रममाण होना. आत्मा मीन्स आत्मा, हम. स वो आत्मा जो भगवान के साथ आध्यात्मिक संपर्क में जीवन में रममाण हो रहा है, उसमें उसका गोल है सुखम अक्षयम अश्नुते. उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस. व्हाट वी वांट? लिमिटेड हैप्पीनेस का एक है प्रकृति और अनलिमिटेड हैप्पीनेस का. तो वी डोंट सीक प्लेजर न तेषु रमते बुधा इन टेम्पररी थिंग, वी सीक हैप्पीनेस इन स्पिरिचुअल थिंग्स. देन once you find that permanent kind of happiness, you won't ask for that temporary happiness. So that also is taught in Bhagavad Gita. It says
रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते। विषया मीन्स विषय, जो हमने बोला ना, विषय इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। जैसे जिह्वा के लिए खाना विषय है, आंखों के लिए कुछ खूबसूरत देखना, सुंदर देखना, वो विषय है। विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से रिटायर हो चुका है, मतलब वो देखने के लिए ऐसा तड़प नहीं रहा है कि मैं ये देखूंगा तो ही मैं आनंदी हूंगा, मैं मूवी देखूंगा तो ही मुझे सुख आएगा। विनिवर्तन्ते, मूवी में टेम्पररी है, थोड़ी देर लगेगा फिर भूल जाएंगे, क्यों उसमें रममाण होना है, वेस्ट नहीं करना मुझे टाइम। विषया विनिवर्तन्ते। निराहार से देहिना, निराहार बिना आहार किए, देहिना मतलब विषय इंद्रिय विषयों का आहार करने में निराहार होना, मतलब उसके लिए इंद्रियों के लिए नहीं करना। रसवर्जम, उसमें का रस छोड़ देना। रसोप्यस्य, रसोप्यस्य मतलब इच्छा होना। इच्छा है, मूवी देखने का इच्छा होता है, अच्छे गाने, भौतिकवादी गाने सुनने का इच्छा होता है, कहीं भी होटल में जाके कुछ भी खाने का इच्छा होता है, अच्छे अच्छे अल्कोहल वाले स्प्रे मारने के इच्छा होता है, मतलब दारू मार रहे हैं ना पूरे शरीर पे, वो इच्छा होता है। वो सब इच्छा है, भगवान बोलते हैं वो रहेंगे वो इच्छा। ऐसा नहीं कि वो इच्छा हृदय से उस बाह्य स्पर्शेषु आसक्ता के हृदय में नहीं है, वो हृदय में है, परंतु वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि वो रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा, वो ऊपर की चीज देख रहा है, अनुभव कर रहा है, इसीलिए वो नीचे में ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो वैसा ही है जैसे आपको एक ऐसा खाने का पदार्थ है जो उसमें आपको रुचि है, और एक पदार्थ है जो रुचि नहीं है। तो स्वाभाविक क्या है, अगर वो रुचि वाला पदार्थ प्राप्त है उसे और वो खा रहा है, तो ये जो पसंद नहीं है वो खाएगा क्यों वो? इसीलिए ये पसंद की बात है, चॉइस, किसमें मैं रममाण होना चाहता हूं। अल्टीमेटली खाए बिना हमें टेस्ट पता भी नहीं चलता ना, परंतु खाने के लिए वो उसको अप्रोच तो करना पड़ता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक एक्टिविटीज को, आध्यात्मिक रिलेशनशिप्स को, साधना को हम अप्रोच करते हैं, वहां पे सुख ढूंढते हैं, वो स्टेज है। सुख मैं वहां ढूंढ रहा हूं, भगवान की सेवा में सुख ढूंढ रहा हूं, क्योंकि भगवान ने डिफाइन किया है उसमें अक्षय सुख की प्राप्ति है, और उसमें उच्च रस की प्राप्ति है, और नीच रस अपने आप निकल जाएगा। सो इफ समबडी इज वेरी फीलिंग वेरी लस्टी एट हार्ट एंड ही फील्स माई लस्ट कैन नॉट गो अवे बिकॉज इट गिव्स मी ट्रिमेंडस प्लेजर, बट भगवान ने क्या बोला है, काम क्रोध तथा लोभ नरकस्येदम द्वारम त्रिविधम, 3 द्वार है नरक के, काम क्रोध लोभ। किसी को लोभ करने में, लोभ चीजों को प्राप्त करने, आज मेरे पास ये मोबाइल है, अभी 24 अल्ट्रा आ गया, 23 अल्ट्रा है, 24 अल्ट्रा चाहिए मुझे, इसको लोभ बोलते हैं। आपके पास कामना पूर्ति भी हुई है, पर कामना की अगली कामना कर रहे हैं, तो ये अगली कामना जो है ना, उसमें रममाण नहीं होना है, लोभ त्यागना है ना। मेरे पास ठीक है, चल रहा है काम मेरा, ठीक है ये, पर मेरा प्रायोरिटी अभी ये है, मैं इधर टाइम देना चाहता हूं। तो दैट इज वेयर द चॉइस कम्स, और ये उसका स्टेट बताया कि ये प्रॉमिस है, उसमें वो है, भगवान का प्रॉमिस ये है। तो इसीलिए वो जस्ट लाइक फिश कैन नॉट बी हैप्पी आउटसाइड, ये हमने देखा था, वैसे ही हम जब तक आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है आध्यात्मिक सीकर के लिए। ए होप इन ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, a chance and a priority to transcendental spiritual activities and life. We have to take out the time, we have to give priority, we have to start seeing the higher taste, अनुभव करना पड़ेगा ना उसका। अभी हमारे पास अनुभव किसका है, शैडो का, सब्सटेंस हमने चखा ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया है, अभी ट्राई करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलेगा। और ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि श्रील प्रभुपाद ने
जब अमेरिका में ड्रग एडिक्ट लोगों को प्रचार किया तो वो हिप्पी से हैप्पी बन गए. हिप्पीज बिकेम हैप्पी. दे वर एडिक्ट्स, womanizers, drug addicts, criminals. There are so many examples. They are living examples of this principle, that they can leave addiction to drugs. It's most difficult thing because they got some higher taste and they're established in that taste. So like that, we will climb up apparently difficult spiritual path very easily if we get the motivation of happiness that is derived from that spiritual practice. But the thing is, we have to start somewhere. Now, one more important thing that I am going to reveal today in this substance and shadow is, when we are trying to seek happiness, the scriptures say that the basic sense of happiness is in giving, not taking. Now you see, when you want to become materially happy, what do you do? Huh? No. No. You give. You give to the stomach. Are you stomach? You are giving to the stomach. Are you body? You are giving to the body. What makes you happy is giving. You are giving something to your tongue. This is very important to understand. This body is not me. I can exist without body. That we saw. So I am giving something to the body when I am in material consciousness. And when I give to the body and it goes to stomach, it gives me satisfaction. क्या तंत्र है आप देखो. आज अभी तक जो भी मैंने प्रेजेंट किया है ना, पूरा साइंटिफिक प्रेजेंट किया है. कहीं पे भी एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सारे प्रिंसिपल साइंटिफिक है. तो ये भी प्रिंसिपल साइंटिफिक है कि गिविंग इज प्लेजर, नॉट टेकिंग. But our misconception is taking, because we are in bodily consciousness and we are thinking I am body, so I am feeling I am eating. No, what we saw, that uh, uh, this verse I told you in that Science of Soul, स्पर्शन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. If you remember this verse, I told you this verse in Science of Soul. What was that verse? The beginning I am not getting. The beginning is the one who is in spiritual consciousness. The start is like that verse. But it says in short that if I am say, while seeing, while walking, while talking, while tasting, while touching, the person who is in divine consciousness knows that he is actually not doing anything, and only the senses and sense objects are interacting with each other. So while eating, the person in divine consciousness knows that he is not eating. The senses are interacting with sense objects and he is aloof from them. He is not that. So when we feel happiness, material happiness, we in a subtle consciousness, material subtle body, we are thinking that I am this body. And then we feel that I will be satisfied by providing what is required for that bodily sense. But the act is giving.
Actually, the act is giving. So when I give to my senses, nice dish, I feel happy. When my tongue tastes something, I am involving myself in that experience and I am taking pleasure out of it, which is temporary. It is there, designed, but it is illusory, it is temporary, it's not permanent. So we are feeding stomach basically. Similarly, there is one more analogy. Do we water the branches of the tree, fruits of the tree, flowers of the tree, leaves of the tree, or root of the tree? Root of the tree. So there is this story that once all the senses of the body, they went on strike. They said, why should we what this legs said why should we walk so much every day for working? Ultimately we have to provide it to stomach. हमें क्या मिलता है? हैंड्स बोले मैं ये निवाला लेता हूँ, खाता हूँ, ये मुंह में रखता हूँ वो निवाला जिह्वा पे, मुझे क्या मिलता है? मैं स्टमक को दे रहा हूँ, मुझे क्या मिला उसमें? ऐसे ही all senses started thinking and they went on a strike and they stopped providing to stomach. What happened? All of them started suffering. Similarly, a very, 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 very essential principle of spiritual happiness is based on this. Narad Muni has given this in Srimad Bhagavad. What he says, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तस्मात् सर्वार्हणम अच्युतेच्छ. These two analogies, same he has given. Yatha, just like taroho, tree. Moola, mool means roots of the tree. Nishechanena, by providing water. Trupyanti, trupta hote hain. Tasya, uske. Skandha, branches. Bhuja, sub branches. Upashakha, still smaller branches. All are satisfied just by putting water at the root. प्राण उपहाराश्च, उपहार करने के बाद, यथेन्द्रियाणाम, जैसे इंद्रियों का पूरा पोषण हो जाता है अपने आहार के बाद. आहार हम करते तो क्या होता है? भूख नष्ट होती है, संतुष्टि बढ़ती है और हम आनंदी हो जाते हैं. ये सब ऑटोमेटिक होता है फीडिंग द स्टमक. सिमिलरली नारद मुनि सेज तस्मात् सर्वार हणम अच्युतेज. अच्युत मतलब भगवान कृष्ण. अच्युत मतलब जिनका अधपतन नहीं होता. भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत है. हम बोलते हैं ना ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः. अच्युताय नमः कृष्ण का नाम है. तो ऐसे अच्युत भगवान कृष्ण को अगर हम संतुष्ट करेंगे तो वैसे ही हम संतुष्ट होंगे जैसे प्राण संतुष्ट होते हैं, इंद्रिय संतुष्ट होती है अपना आहार करने के बाद, या मूल जो रूट ऑफ द ट्री है उसमें पानी डालने के बाद पूरा पानी सब जाता है, क्योंकि भगवान के हम पार्ट एंड पार्सल है. वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. सो व्हेन यू सैटिस्फाई कृष्णा, गॉड, you will be satisfied. That is the sutra of spiritual happiness. That is sutra of spiritual relationships. So how can we become happy? The soul can become happy only by serving the Supreme Lord. When we unite ourselves with our Supreme Father. So इसीलिए those relationships which are on spiritual platform are called spiritual relationships. So there is conception of spiritual identity, soul. There is conception of spiritual world, a place where spirit souls live. Dhama, tad dhama paramam mama, yad gatvana nivartante. Once you go there, you won't come back. That conception is there. Then there is this conception of
having relationship with God, satisfying God, because we are part and parcel of him. ट्री का एक ब्रांच होता है, दैट ब्रांच इफ वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम ट्री देन वो सूख जाता है. वो अगर ब्रांच कनेक्टेड है ट्री के साथ तो फ्लरिश होता है. सिमिलरली व्हेन वी आर कनेक्टेड टू गॉड वी विल फ्लरिश इन हैप्पीनेस. लाइफ विल बी देयर. इफ वी आर डिस्कनेक्टेड देन देयर इज नो फ्यूचर. तो ये मूल रिलेशनशिप हुआ. अभी ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम बोला था, ट्री का रिफ्लेक्शन है ना. तो यहां पे जैसे माँ बाप है वहां पे भी माँ बाप है, यहाँ पे जैसे बच्चे हैं वहां पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स है वहां पे भी फ्रेंड्स है, यहाँ पे जैसे पति पत्नी है वहां पे भी पति पत्नी है. कहाँ पे? ओरिजिनल ट्री में, ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो इटर्नल रिलेशनशिप सोल का है उसे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स कहते हैं. तो आपके पिता, आपके पति, आपकी माता, आपके भाई, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में आपके साथ कितने सालों तक है? या इस जन्म में है, नेक्स्ट जन्म में, पिछले जन्म में कौन था पता नहीं. तो दे आर कॉल्ड मटेरियल रिलेशनशिप्स एंड दीज आर कॉल्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स. सो मटेरियल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स में वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस. It doesn't mean we no more are loving our mother, father, and husband. It doesn't mean. We see the spiritual relationship, spiritual connection. So when we are at home, we spiritualize our material relationships. And scriptures guide us in that. Scriptures say that it is a spiritual duty to serve one's mother and father. So we spiritualize the relationship. And it may happen that both husband and wife, they spiritualize their relationship by putting Krishna in the center and getting connected. Both of them return back to spiritual world and become a husband wife there. समझ में आ रहा है? तो that is spiritualizing the material relationships. So that relationship is not temporary like this. We have our eternal relationships. Spiritual relationships versus material, from shadow to substance. Now this is very important. क्या करना पड़ेगा? एक 5 मिनट में मैं लेता हूं, फिर आपका एक नेक्स्ट सेशन कोई लेने वाला है जो प्रैक्टिकल शुरू होगा. अभी ये स्पिरिचुअल टेस्ट कैसे लेना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कैसे करना है. तो व्हाट डू वी डू विथ आवर मटेरियल बॉडी देन, मटेरियल आइडेंटिटी? भगवद गीता टेल्स व्हाट टू डू विथ इट. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये. द योगीज, मतलब ऑल ऑफ यू आर नाउ योगीज, अबेंडनिंग अटैचमेंट, अपनी आसक्ति छोड़ के, एक्ट विथ बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन विथ ऑल सेंसेस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन. सो वी ईट प्यूरिफाइड फूड फॉर अवर इंटरनल प्यूरिफिकेशन. We were eating earlier for taste. Now we are eating for purification. We are seeing for purification. We are hearing for purification of our mind. And this, by following this path, tad buddhaya, knowing which, tad buddhaya tadatmana tad nishtha tad parayanah gachanti apunaravruttim jnana nirdhuta kalmasha. When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. वो व्यक्ति फिर सारे दुखों से मुक्त होने के लिए रेडी हो गया. कब? जब वो समझता है बुद्धि से. तद बुद्धय, वंस इंटेलिजेंस माइंड से कोऑपरेट करता है. माइंड आज बोलेगा अरे नहीं नहीं मुझे बहुत बोर लग रहा है, अभी ये कितना पढ़ू ये स्पिरिचुअल बुक, कितना मंदिर में जाने का, कितना वही सुनने का, मैं आज किशोर कुमार के गाने सुनूंगा. तो दैट इज माइंड. फीलिंग है ना माइंड के. तो वी हैव टू ग्रेजुअली फिक्स अवर माइंड एंड टेक इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर. अभी वो गाना भातुकलीच्या खेळामधली मटेरियल कॉन्शियसनेस में यू कैन हियर एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यू कैन हियर, सेम एक्टिविटी.
and some song which cannot be connected to spirituality you may not like. पहले लगता था बट क्या घटिया लिरिक्स है इसका। ऐसे गाने भी होते हैं ना जो नॉन वैदिक कल्चर को थोपते हैं अपने ऊपर। डाइवोर्स, लेडीज को डाइवोर्स लेने के लिए उत्तेजित करने वाले गाने होते हैं। दोज वी हैव टू स्टॉप। इसीलिए बोला फिक्स्ड अप, टेक रेफ्यूज, आश्रय लेना। हम मां की गोद में आश्रय लेते हैं ना, वैसा हम भगवान को समझ रहे हैं क्या, आश्रय ले रहे हैं क्या। तो हमें दुख को दूर करते वक्त हम पहले गाने सुनते थे, अभी भगवान के गाने सुने। दैट इज व्हाट इज सेड। तो दैट इज हाउ यू कैन गेट फिक्स्ड अप इन दैट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड दैट इज अ प्यूरिफाइंग एक्सपीरियंस। एंड वो एक्सपीरियंस ऐसा होगा, आपको ऐसा वो प्रॉमिस करता है, यू विल बी अपलिफ्टेड एंड यू विल ऑटोमेटिकली लीव व्हाट इज अनडिजायरेबल। तो ये भागवतम में भी कहा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र जो भी है हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नष्ट प्रायेषु, प्रायः मीन्स धीरे धीरे, नष्ट मीन्स नष्ट होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम, अगर आप नित्यम भागवत सेवया, अगर आप भक्ति सेवा कर रहे हो, भक्तिमय सेवा कर रहे हो, नित्य कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो भी अभद्र है वो नष्ट हो जाएगा। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपसे दूर हो जाएगा। ड्रग्स आपके लिए अच्छा नहीं है, आप एडिक्ट हो, वो दूर हो जाएगा। ये शक्ति है उसकी अपलिफ्ट करने की चेतना को। तो दैट इज व्हाट इज शैडो टू सब्सटेंस, नॉट बीइंग हॉन्टेड बाय शैडो। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। आपको सुखी नर होना है ना। You want to become a happy man. So God's prescription is this, how to become happy. He says, before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of material senses and check the force of desire and anger, the force will be there, it will push you. Desire and anger. But he is well situated and happy if he can control them. If one can control anger, if one can control desires. बोलते ना हम बच्चों को, अरे यार पढ़ाई कर, अगर तू 10वीं में ठीक से मार्क नहीं लाया ना तो पूरा लाइफ पे इंपैक्ट होने वाला है। बोलते हैं ना हम लोग कि छोड़ दे, यही बोला है, शक्नोति, शक्य जिसको होता है, इह एव, अभी इसी वक्त से, सोढ़ुम, छोड़ देना, प्राक शरीर विमोक्षणात्, ऐसा नहीं शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर छूटने से पहले ही, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध के जो वेग आ रहे हैं आपके ऊपर, उनको शमन करो, उनको छोड़ दो, उनसे दूर होने की कोशिश करो और अपने को आध्यात्मिक काम में, कार्य में, सेवा में लगाओ, तो आपको सुखी जीवन का अनुभव होने लगेगा। हम इसको निगेटिव लेते हैं क्योंकि हम आसक्त हैं शारीरिक चीजों से। अगर हम इसको भगवान का प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, फिर हमें अनुभव होगा और हम सुखी भी होंगे। ये प्रॉमिस है। तो इसीलिए गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी हैव अ मेथड। हमें अपने निर्मान मोहा, निर्मान मतलब हम्बल, विनम्र होना, मान की अपेक्षा ना करना, निर्मान मोहा, उस मोह में नहीं पड़ना, जित संग दोषा, आसक्ति से दूर होना, अध्यात्म नित्यास, हमेशा ही नित्य आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए समर्पित होना, विनिवृत्त कामा, जब काम निवृत्त हो जाएगा इस तरह से, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व मतलब शीत उष्ण सुख दुख, इससे विमुक्ता, सुख दुख संज्ञा, जिसको हम संज्ञा बना के रखें, डेफिनेशन, ये सुख है, ये दुख है, ये हमने जो बना के रखे है, उससे विमुक्त होने के बाद गच्छन्ति, जाते हैं, अमूढ़ा मतलब जो मूर्ख नहीं है वो, पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय जगह पे तुम जाओगे। फिर अगर तुम ऐसा जीवन जियोगे तो वहां जाओगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me, by such devotion he can enter into the kingdom of God. तो हमारे शरीर छूटने के बाद हम जन्म मृत्यु से छूट के भगवत धाम जाएंगे। तो अभी ये प्रोसेस कैसा है, मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सब्सटेंस एंड शैडो, अभी इट्स अ कंसर्न,
क्योंकि हम शैडो में इतना जीने की आदत हो गई है कि इट अपीयर्स डिफिकल्ट. आई डोंट नो वेदर यू आर हैविंग दैट थॉट प्रोसेस, डीप थिंकिंग इन माइंड कि अरे ये तो मुश्किल लग रहा है. मतलब जहां पे मैं आनंद इतने जीवन भर लेते आया हूं, अभी मुझे वो आनंद कहीं और खोजना है. और मुझे पता भी नहीं ऐसा कुछ होता है वर्कआउट की नहीं. बोला है भगवत गीता में, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, पर उदाहरण भी बता रहे हैं. पर मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपना यूजुअल सीकिंग ऑफ हैप्पीनेस का एरिया ही बदल दूं, क्योंकि मैं आदत है मुझे उसमें ही हैप्पीनेस मुझे मिलता है. तो उसके लिए जागना पड़ेगा हमें. या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने है, भगवान बोलते हैं. जहां पे स्थित प्रज्ञ मुनि की रात होती है, वहां पे भौतिकवादी लोगों का दिन होता है. और जहां पे भौतिकवादी लोगों की रात होती है, वहां पे अध्यात्मवादी का दिन होता है. जागता है वो वहां पे. तो भौतिकवादी कहां जागते हैं? कुछ इंद्रिय तृप्ति के विषय मिल गए, अरे वो सिनेमा रिलीज हो गया, सब भागते हैं सिनेमा देखने. वहां पे आत्मसंयमी व्यक्ति सो जाता है. सिनेमा है क्या यार, देखो मेरे को क्या उसमें, मेरे को आनंद कुछ और चीज में है. तो वो रात का दिन और दिन का रात. तो अभी एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है. हम जो चेतना में, अभी जागृत चेतना में अनुभव कर रहे हैं सब जीवन का, वो मानो हम स्वप्न देख रहे हैं अपने अस्तित्व का. और हम जब जाग जाते हैं तो हम स्वप्न में जो अनुभव किए हैं, उनमें जो हम रममाण हुए थे, उनमें जो सुख दुख का अनुभव कर रहे थे, वो सारे सुख दुख नष्ट हो जाते हैं. इफ यू आर फियरफुल इन अ ड्रीम, टाइगर इज चेसिंग यू, और यू आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम सम प्लेस, और यू मिस टू गिव एग्जाम, और सम एक्सीडेंट हैपन, एंड यू आर सीइंग समबडी नियर एंड डियर वन इज डेड. ऐसे सपने आते हैं ना. तो when you experience that distress in your dream, you are not happy, you are feeling very down. In dream only you feel tense, stressed, unhappy. But when you wake up, do you feel the same? Trace is there, little trace of depression is there. But when you fully wake up, you take bath and forget dream, then it's no more troubling you. So all distresses in this world, adhyatmic, adhibautik, adhidaivik klesh, birth, old age, disease, death, all of them are dreams of our material consciousness. अभी जो भी सुख और दुख का हमें आसक्ति है, वो ड्रीम वाला है. कभी कभी अच्छा सपना भी आता है, स्वीट ड्रीम्स. वी डोंट वांट टू वेक अप फ्रॉम द स्वीट ड्रीम, and we are enjoying in that dream. But is that enjoyment a substance in real life? It's a dreamy enjoyment. It's a dream. And when that dream is broken, I have become a millionaire, I have a Mercedes Benz car, वो सब ड्रीम खत्म होने के बाद ना तो कार है, ना तो मैं मिलियनियर हूँ, तो वो हैप्पीनेस चला जाता है. दैट इज मटीरियल हैप्पीनेस कंपेयर टू ड्रीमी स्टेट, मटीरियल डिस्ट्रेस कंपेयर टू ड्रीमी स्टेट. बट व्हेन यू वेक अप, you are not concerned about taking happiness and distress of dreamy consciousness seriously. You don't want it. You are woken up. Now it's a meaningless thing for you. Similarly, a spiritual person sees no meaning. Na teshu ramate buddha. Self-realized soul doesn't take any interest. It's a night for him. It's a waste of time for him. वो स्टेट जो है, इसी स्टेट को ऑब्टेन करना एक ग्रेजुअल सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है. सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स वेकिंग अप फ्रॉम मटीरियल ड्रीम एंड गोइंग बैक टू स्पिरिचुअल रियलिटी, सब्सटेंस. वेकिंग फ्रॉम शैडोई फिगर्स टू एक्चुअल फिगर्स, सच्चिद आनंद फिगर्स, सच्चिद आनंद रिलेशनशिप्स, इटर्नल हैप्पीनेस एंड नॉलेज. So the gateway to it is through chanting.
The chanting is the mechanism which connects us from dreamy consciousness, material consciousness, to spiritual consciousness. It's a telephone number of God. It's God appearing on your tongue. It's speaking with God, connecting with God, purifying process of our material consciousness. ये चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज प्राइमरी. बाकी उसके अराउंड सपोर्टिव एक्टिविटीज है. तो इफ यू वांट, इफ यू आर सीइंग somebody is in dream and laughing, or somebody is in dream and he is crying, what you do first? उठो उठो. हिलाने से भी कभी कभी नहीं उठता है, तो आप यू शाउट उठो उठो. अरे ड्रीम देख रहे हो तुम, उठो, ये सच्चाई नहीं है, उठो. कभी कभी लोग ड्रीम में चलते भी है ना, तो उसको बेसिकली साउंड वाइब्रेशन से जगाया जाता है. तो ये भी स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है. स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो व्हेन यू, बाकी ये जो साउंड वाइब्रेशन आ रहा है अभी, ये मटीरियल साउंड वाइब्रेशन है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है. ये वो आवाज है, वो जागृत जगत से सोए हुए जगत में जगाने के लिए अवतरित हुई है. तो वो हमें जगाएगी, वो हमें पता करके देगी कि मैं कौन हूं. वो हमें अपना अक्षय सुख का अनुभव करा के देगी. तो राज प्रभु, your turn now. So Raj Prabhu is going to introduce you this chanting of the holy name and its process today. So I hope the beads are there. So he will teach this technique. Many of you may be already doing it, how to do chanting. I request all of you to start this practically from today. Chanting of the holy names and waking up from dream of shadowy figures in material world and waking up in spiritual identity. This is the process. It's not one day thing, because we are dreaming from millions of births. Millions भी छोटा नंबर हो सकता है. We are dreaming in material consciousness. To wake up is a process. So let us start this process of returning back to our spiritual identity. And I pray to Sri Sri Radha Govind Ji sincerely that all of you take this spiritual substance of chanting of the holy name sadhana very seriously in your life, and start waking up and experience the higher taste and give up the lower taste. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. The rest of the announcements also Prabhuji will do. Tomorrow is the last session. Tomorrow there will be certificate distribution also. Hare Krishna. There will be quiz also. Online quiz preferably, because you will instantly know the result. Otherwise पेपर चेकिंग करके फिर 2 दिन बाद आएगा बस. उससे अच्छा है आमने सामने रिजल्ट देख लो. तो all of you make sure you have your login, Gmail login into iskonrawit.com. Check whether you are able to log in, you are able to see your